جوان جوان لڑکے لوگ موبائل میں رمضان کے مہینے میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان فری فائر کھیل رہے ہیں، موبائل میں چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل میں طرح طرح سے کام کر رہے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، یہ روزہ بھی اور رمضان کا وہ دن بھی آپ کے لیے بڑا زبردست ہے، اور راتیں بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، واحتسابا ایمانا واحتسابا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اگر اس نیت سے اس نے روزہ رکھا، دن کاٹ لیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے رات میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، ہاں قرآن کی تلاوت کیا، رات میں جاگ جاگ کر کے اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا۔ رمضان کے مہینے میں رات میں جاگنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر اس نے یہ کام کیا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، رات بھی دیکھیے اور دن بھی دیکھیے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی روزہ اور یہی قرآن شافی بن کر کی آئے گا، یہی قرآن اور یہی رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس شافی بن کر کی آئے گا۔ یقول الصیام، اللہ کے سامنے یہی روزہ چیخ کر کے کہے گا اے رب منعت الطعام والشہوہ، اے پروردگار، اے میرے رب، ہم نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے، کھانا تھا لیکن یہ کھاتا نہیں تھا، پانی تھا لیکن یہ پیتا نہیں تھا، اے اللہ سامنے خوبصورت بیوی تھی لیکن یہ بیوی سے ملتا نہیں تھا، تیرا ڈرتا اللہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ روزہ وکیل بن کر کی آئے گا، یہ روزہ سفارش بن کر کی آئے گا، شافی بن کر کی آئے گا، اللہ کے سامنے سفارشی بن کر کی آئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہی قرآن کہے گا اے رب منعت النوم، اے پروردگار، ہم نے اس کو سونے سے منع کر دیا تھا، نیند تو آتی تھی لیکن رات میں جگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، ہاں امام کے پیچھے قرآن سنتا تھا، ہاں یہ رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ اس بندے کو بخش دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا اور دونوں کی بات کو اللہ تعالیٰ مان لے گا اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ روزہ بھی تیرے لیے شافی سفارشی بنے گا، وکیل بنے گا، اور یہی قرآن جو جس کی تلاوت تم کرو گے، جس کو تم پڑھو گے، پڑھنا تو سال بھر بھی چاہیے لیکن رمضان میں خاص کر کے اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے قرآن سنے، ہاں نماز کی حالت میں جا کر کے قرآن سنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن بھی اللہ کی یہاں شافی بن کر کے آئے گا۔ ہمارے یہاں تراویح کا اہتمام نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے آدمی جائے گا، ایک دن، دو دن، تین دن، اس کے بعد پیروں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، یہ درد ہے، وہ درد ہے، ایسا لگے گا اس کو کون سی بیماری ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جوان لڑکے لوگ باہر میں چوراہے میں بیٹھ کر کے موبائل چلا رہے ہیں، سال بھر چلایا کوئی ٹینشن نہیں، سال بھر چلایا۔ ارے میرے بھائی غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سنو او ستگاچھی کے لوگوں اور میری باتوں کو سننے والوں، چینلوں کے ذریعے سے سنو، غور سے سنو، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے،
बाबरकत महीना जैसे ही शुरू होता है अल्लाह तबारक व तआला तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना, हाँ जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देता है, व तुगलक़ु अबवाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे को अल्लाह बंद कर देता है और शैतान को भी अल्लाह ताला बंद कर देता है। और फिर क्या होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयुनादी मुनादी ने का आवाज लगाने वाला, एक पुकारने वाला, हाँ आसमान से पुकारता है, कुल्ला लैलतिन, हर रोज पुकारता है, हर दिन पुकारता है, एक पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकियों के तलबगार, ऐ नेकियों को अपनाने वाले, ऐ नेक काम करने वाले, ऐ सवाब हासिल करने वाले, ऐ जन्नत के तलबगारों, ऐ जन्नत के पाने वालों, ऐ जन्नत के लिए मेहनत करने वालों, ऐ जहन्नम से बचने वालों और जहन्नम से बचने की कोशिश करने वालों, या बाग़ियल खैर, ऐ नेकियों की तलबगारों, नेकियों वाला महीना गया है, आओ नेकियां कर लो, आओ नेकियां जमा कर लो, ये नेकियों वाला महीना है, इससे बढ़कर के नेकियों वाला महीना हो नहीं सकता है। आओ आओ इस महीने के अंदर नेकी कर लो, एक भी टाइम, एक भी मिनट तेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐ नेकी करने वालों, ऐ जन्नत में जाने वालों, ऐ जन्नत के लिए कोशिश करने वालों, इस महीने में जन्नत के लिए कोशिश कर लो। एक फरिश्ता पुकारता है और रोजाना पुकारता है, और फिर फरिश्ता दूसरा फरिश्ता कहता है, या बाग़ियश शर्री, ऐ बुराई के काम करने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ चोरी करने वालों, ऐ डकैती करने वालों, ऐ मोबाइल में गलत चीजों को देखने वालों, ऐ हसद करने वालों, ऐ जलने वालों, ऐ हराम खोरों, हराम कमाने वालों, ऐ ज़िना के अड्डों में बैठने वालों, सुनो, अक्सिर अक्सिर, अपने हाथ को रोक ले, अपने पैर को रोक ले, अपनी आंखों को रोक ले, अपने कान को रोक ले, गलत कामों से रोक ले। रोजाना पुकारा जाता है, लेकिन हम तो ऐसे हैं, कुत्ते का दुम जैसे टेढ़ी रहती है ना, सीधी नहीं हो सकती है, ऐसे इस कौम के कुछ लोग ऐसे हैं, कोई भी महीना आ जाए मौलवी साहब वो करना छोड़ेंगे ही नहीं। रमज़ान में भी वही गलत काम करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, गाली भी देंगे, हाँ ऐसा लगेगा रोज़ा उसी के लिए रख रहा है। अगर झगड़ा हो गया गालियाँ मत पूछिए, ऐसा लगेगा PhD करके आया हुआ है, इतनी गालियाँ रोज़े के महीने में। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचिए जरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी रोजा रखता हो, हाँ, और रोजा सुनो, रोजा उन लोगों के लिए नहीं होगा, और रोजा रखने वालों सुनो, जो रोजा रखता हो और रोजा रखने की हालत में अपनी जबान से गलत बात बोले, गाली दे, उसके लिए रोजा नहीं। जो आदमी रोजा रखता है और गाली दे, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी किसी को मारे, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी किसी को गलत नजर से देखे, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी गलत काम करे, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी मोबाइल में फ्री फायर खेले, उसके लिए रोजा नहीं है। जो आदमी ये चैटिंग करे, अपनी लड़कियों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बातें करे, उसके लिए रोजा नहीं है। हाँ रोजा उसके लिए है जो अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करे, अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल करे, अपने पैरों के ऊपर कंट्रोल करे, अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल करे, अपने कान के ऊपर कंट्रोल करे। इस आंख से हम गलत चीज नहीं देखेंगे क्योंकि रोजे की हालत में हो। अगर कोई लड़की तुम्हें चैटिंग में बुलाए, तुम्हें बात करने के लिए बुलाए, तुम्हें अगर कोई दोस्त गलत काम की तरफ बुलाए, अगर गाली दे, मारे, अल्लाह के नबी फरमाते जवाब में कहो इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं तुम्हारे साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता, मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता। रोजे की हालत में हो, ये दिन बहुत ही कीमती है, मैं इस दिन को बर्बाद होने नहीं
दूंगा, इस वजह से जाओ जाओ, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये महीना आने वाला है, इस महीने से पहले अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करो, इस महीना से पहले तुम अपने मोबाइल से गंदी गंदी फिल्में को डिलीट करो, लड़कियों के कॉन्टेक्ट को ब्लॉक लिस्ट में डालो, कोई संपर्क नहीं करेंगे। ओ बहनों, तुम भी लड़कों के जिनको तुमने बॉयफ्रेंड बना रखा है उनको ब्लॉक लिस्ट में डालो, उनसे कहो मैं तुमसे बातें नहीं कर सकता, कर सकती हूँ, क्योंकि ये महीना तकवा पैदा करने वाला महीना है। हाँ, अब ऐसा नहीं है रमजान खत्म हो तो अनब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं है कि मौलवी साहब ने बोला रोजे की हालत में ब्लॉक कर दो और बाद में अनब्लॉक कर दो। तकवा वाला महीना, बाद में तकवा आपका कितना बाकी रहता तब ना पता चलेगा। मेरे भाइयों, ये महीना वो महीना है जिसमें आदमी को अल्लाह मुत्तकी बनाने के लिए ये महीना बनाया है। मुत्तकी बन जाओ, इससे बढ़कर के बड़ा महीना कोई आ ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए, दो आदमी हजरत तलहा बिन उबैद कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो आदमी आए और दोनों मिलकर के गए। एक आदमी मैदान जिहाद में लड़ाई करने गया, जंग करने गया और मैदान जिहाद में लड़ते लड़ते शहीद कर दिया गया, हम मर गया। और दूसरा आदमी 1 साल के बाद मरा, 1 साल बाद मरा। वो हजरत तलहा कहते कि मैंने ख्वाब में देखा जो आदमी पहले मरा था वो बाद में जन्नत में जा रहा है। मैंने ख्वाब में देखा मैं जन्नत के दरवाजे में खड़ा हूँ और मैं क्या देखता हूँ, जन्नत से एक फरिश्ता निकलता है और जो पहले मरा था, हाँ जो बाद में मरा था उसको पहले जन्नत में एंट्री करवा रहा, बुला रहा है, आओ तुम जन्नत के अंदर एंट्री कर लो, तुम जन्नत के अंदर जल्दी से चले जाओ, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर दूसरी मर्तबा ये फरिश्ता निकलता है और जो पहले मरा था उसको जन्नत में बुला रहा है, अब तुम जन्नत में आ जाओ। अल्लाह के नबी ये बताइए, अल्लाह के रसूल ये बताइए, वो तो मैदान जिहाद में भी गया, वो मैदान जिहाद में भी लड़ा, हाँ अल्लाह के राह में उसने जंग लड़ी, हाँ तलवारें चलाई, गर्दन उसकी कट गई, अल्लाह के राह में हाथ पैर सबकी शहीद कर दिया गया। अल्लाह के नबी ये बताइए, वो आदमी पहले मरा, जन्नत में पहले जाना चाहिए था, यह आदमी 1 साल के बाद मरा, लेकिन आए अल्लाह के नबी ये तो मैदान जिहाद में भी नहीं गया था, लेकिन अल्लाह के नबी ये पहले जन्नत में जा रहा है। अल्लाह के नबी मुझे ताज्जुब हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, अलईसा कद मकसा हाज़ा, ऐ मेरे भाई क्या उसने 1 साल की जिंदगी नहीं काटी? कहा कि हाँ उसने 1 साल की जिंदगी काटी। आपने फरमाया क्या उसने रमजान का महीना नहीं पाया, रमजानुल मुबारक का महीना नहीं पाया? अल्लाह के नबी उसने रमजान का महीना भी पाया। क्या उसने कुरान की तिलावत न की? अल्लाह के नबी कुरान भी पढ़ा। क्या उसने रमजान की रोजे नहीं रखा? अल्लाह के रोजे भी रखा है। क्या उसने नमाजें न पढ़ी? अल्लाह के नबी उसने नमाजें भी पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजा का रमजान का महीना पा लिया और इस महीने में इबादत कर ली, इस महीने की बरकत की वजह से वो बंदा है उस आदमी से पहले जन्नत में जा रहा है। ओ लोगों खुश नसीबो, तुम्हें ये महीना मिलने वाला है। इस महीने में अपने आप के लिए जन्नत को कन्फर्म करा लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मेरे प्यारे साथियों, इतना बाबरकत महीना और इतना बाबरकत और अहमियत वाला महीना तेरी जिंदगी में आए ना आए, कई लोग थे इस साल में जो दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं, अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है। मेरे भाइयों क्या पता मेरे भाइयों, अब आइंदा ये महीना तो आने वाला, अल्लाह से दुआ कर अल्लाह हमें इस महीना से मुलाकात करा दे, इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करने वाला बना दे, इस महीने में कुरान की तिलावत करने वाला बना दे। मेरे प्यारे साथियों, ये महीना अल्लाह को राजी करने वाला महीना है। लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया ये महीना हमने मुत्तकी बनने के लिए हमने बनाया है, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ।